alaikum. Today we have very special guest with us, Noor Fatima. Let me introduce her. She has done Bachelor's in Finance and she has done MBA Marketing from Lahore School of Economics. She has also done internship from Philippines. She has done teaching. Also, she has worked in a corporate environment. She has, after marriage, she has looking after social media and marketing of Mirror Salon in Multan, and she has launched her own cosmetic shop, Aina Cosmetic in Multan, and recently she has started mom blogging. So let's welcome multi-talented and very special Noor Fatima. Thank you so Welcome much, to Laaj. my channel. Thank you so much. Really happy and glad to be here. So basically you are sharing about your motherhood experience on your Instagram. Yes. You are doing great on your Thank Instagram. you so much. So I would like to know what was your reaction when you get to know that you are becoming mother? I think it was totally opposite of what is actually shown in the TV. जो आप फिल्म्स में देख रहे होते, it's totally not like that. I was more like confused, shocked, and that time when I got to know, okay, you know, I've conceived. My best friend's father passed away that very day, and it was very difficult for me to share that news with all my close friends. So I couldn't share that news at that time, and I was already going through, you know, so much, and but you know, it is actually shown that, you know, you're very excited, and you know, you're just telling everyone about this. But in my case, the news with your family and it was very difficult. Plus, I told my family after 2 to 3 days. I was in Lahore when I got to know about this. I told my husband, but I had to go through some tests because my pregnancy was very complicated, as I told in my blog earlier. So, you know, it was very hard for me to tell this news to my parents and my husband's parents, because, you know, it was very difficult, okay, whether I will be able to carry forward this pregnancy or not. So there were a lot of mixed emotions. There were complications. So it was more like, you know, confused kind of a situation. And what was your reaction when you hold Alaya first time in your arms? Honestly, it took me a day to actually hold her. I had a C-section, so I was not in a state actually to hold her. So when I came back home, and at that time when I held her, okay, it was like I got all the emotions which were not present शुरू से pregnancy के, वो अचानक जो है ना, oh my god, it was, you know, एक होता है ना कि बिल्कुल emotions की एक wave आ गई थी. So it was like that, and again, instead of being very happy, I was nervous. I was just crying all the time. I don't know why I'm crying, but I used to just cry. You know, she's just lying there, and I'm just looking at her and I'm crying all the time. So it was like that शुरू में. अब जाके I started, you know, okay, enjoying her. Yeah. So बहुत ही weird सी feeling थी. So has anything changed after? Oh, your whole life changes. I think your priorities change. Your body is not yours anymore. Now, whenever we have to make plans, शुरू में यही होता था, okay, you know, we want to go to Lahore, okay, let's just go. You have to plan everything. Everything. Even if I have to go to a market, I have to, you know, make proper plannings. Okay, you know, I have to go out for this time, और उसके लिए कौन अलाया को देखेगा. So it's like everything is planned. You're more responsible. You have to look after another living being, you know. She's a proper human being, and you have to look after her. So it's a huge responsibility. So are you enjoying this responsibility? Everything has its own perks and, you know, cons. But yes, I'm loving it. I can't, you know, imagine my life without her now. But at the same time, it gets very hectic. You have to, even, you know, I hardly take time out for a shower. So it's like कि आप अपने आप को भूल जाते हो, but at the same time you actually enjoy every stage of your baby as well. So as you told before, your pregnancy was little difficult. Yeah. So what kind of health issues you face, like dizziness or vomiting? Before starting my pregnancy, I had thyroid issues. All of a sudden I got to know कि अच्छा, I had a weight gain, और I started my pregnancy with a heavy weight. And during my pregnancy, I lost 10 kgs. I couldn't eat anything. I got to know that, okay, I'm anemic. My hemoglobin was continuously going down. My thyroid issues were there. I had severe back pain. I used to have headaches. Then something went wrong with my ear. I started having those ringing sounds in my ear. So a lot of things were happening. And
like there was always a guilt as well. Okay, you know, okay, I'm not eating anything. You know, what is my baby gonna get? But I couldn't eat anything. So you make any routine changes when it comes to your food or diet? Honestly, I read a lot of books. I watched a lot of videos, but every pregnancy is difficult and not difficult, different basically. I know a lot of people who are like कि you know हमें तो कुछ feel ही नहीं हुआ था, and even और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मेरे जैसा हाल था. तो I thought about it कि okay, you know, I'll have a proper diet plan, I'll exercise, I'll do this and that, but जब वो start हुई, it was difficult, कुछ भी नहीं. Even whatever I read, whatever I planned, it was totally opposite of that. So there was no routine, no diet plan. Even my doctor was like कि अच्छा यार cold drink ही पी लो. You know, at that time they are saying अच्छा no, you know, come on fresh juices and stuff like that. But they were like just eat whatever you wanna eat, even if it's healthy or not healthy. But you should be taking something. So you have certain types of food craving, like They were not even cravings. I was hating everything. Okay. I am a caffeine or like मैं बहुत चाय पीती थी. I started hating tea. I started hating every food जो मुझे पसंद होता था. So honestly, there were no cravings at all. उस time बस ये था कि okay, you know, just eat anything. पर वो एक up feeling हो रही होती है. You know, I actually thought about it before the start of my pregnancy. अच्छा चलो cravings होंगी. I'll eat this and that, you know, but nothing. It was all opposite, totally opposite. Okay. So you have discussed about the books you read during the pregnancy. So is there any app or website which our audience can use? I think now there are a lot of things on Instagram. There are a lot of pages. If you want, I can tell you the pages. You can tag them in your video. Yeah, sure. Yeah. So those pages helped me a lot, by the way. Okay. You know, I used to read about, okay, you know, baby is 1 month old. These are the things, you know, a normal baby is doing. These are the things you need to be careful about. So books से तो पढ़ा ही पढ़ा था, but from those pages on Instagram, they helped me a lot, and they're still helping me with a lot of things. I would like if you can share for the mothers. I will, definitely, I will. Okay. So how important is the support system? Since you told me that it was very difficult physically and you have health issues during the process. So how much support system helped you during the whole process? During pregnancy and after? Yes. Okay. It is very important. I am really happy and glad that I was there with my family. My family was there with me all the time. During my pregnancy, I didn't go to my mother's place because of Corona. She's basically in Lahore. So my mother-in-law, my sister-in-law, my father-in-law, they all took very good care of me. Even my husband was always there. तो उसमें ये होता था कि So you were here with your in-laws during the whole during time? the pregnancy and even after the delivery. My family came here, so it was like a full house. My you know, mother-in-law, my mom, my father-in-law, my sister-in-law, my sisters, everyone were here after the delivery. So because I had a C-section, so I was on rest like 3-4 days. And so my mother-in-law and my mom, they both used to take shifts for Alaya. So रात भी होता था कि okay, my mom is up, she's taking care of Alaya, then she's gonna sleep, and then my mother-in-law is gonna do that. So my mother-in-law really helped me a lot. Usually ये बहुत एक concept होता है कि अच्छा, you know, इस तरह की चीज़ देखी नहीं जाती. But even after delivery, she was the one who actually helped me taking a bath. She was the one who helped me with, you know, कि अच्छा ये खाना है वो खाना है. Even my mom was there, but इतना हो गया था कि I was more comfortable with my mother-in-law. Okay. तो उसके अलावा after delivery, my husband is the one who's very supportive. It's like when he comes back from home, he's the one who takes care of her. Yeah, at night he's the one, okay, के 2 से 3 shifts my husband जो है वो देख रहे होते हैं कि अच्छा चलो लाया को दूध पिलाना है, ये करना है. And I'm actually very comfortable in, you know, if I have to go out, I just ask him to take care of her, and he's so good at it. Plus my daughter is so attached to him. तो वो मतलब ये नहीं होता कि okay, she's gonna cry, where's my mom? तो अगर अंश है my husband, तो she's comfortable with this. So have you been through postpartum depression? Oh yeah, I told you I used to cry a lot. Yes. I had a surgery, as I mentioned earlier, C-section. So I used to have nightmares. I used to get them like पूरा महीना. In fact, I had those kind of nightmares where I saw okay, you know, there's a surgery because I was up. I was conscious throughout my delivery basically, surgery.
तो I used to get those nightmares. Then I was so scared. Okay, now my baby's here. You know, I don't want. Scared of your responsibility that this Not even responsibility. I was scared कि okay कुछ हो ना जाए. You know, okay, she's so small. तो even मेरा ये हाल था कि every after half an hour used to get up. ठीक है, मेरे हर हाफ एन आवर के बाद के अलार्म्स लगे होते थे. आई जस्ट यूज टू गेट अप एंड चेक ओके इफ शी इज़ फाइन, शी इज़ ब्रीदिंग फाइन. तो वो अभी तक है, अब थोड़ा बेहतर हो गया है. प्लस आई टोल्ड यू कि मैं बहुत रोना स्टार्ट कर दिया था. लाइक एट नाइट आई एम क्राइंग, मैं दिन में रो रही हूँ. आई डिडंट नो व्हाट वाज दैट. फिर माई हस्बैंड वेंट टू द डॉक्टर, जो लाया के डॉक्टर थे. बेसिक कैजुअली बात हो रही थी एंड ही टोल्ड हिम कि यू नो शी इज़ गोइंग थ्रू दिस. एंड देन द डॉक्टर गाइडेड हिम कि ओके यू नो शी इज़ हैविंग दोज काइंड ऑफ इमोशंस, इट्स postpartum depression. So just be supportive. Do you took any help or therapy for all that? Honestly, Corona tha, and then there was new baby. I didn't go for that. But I do suggest women who don't have good support systems, they should be going for therapy. And मैंने सोचा भी था कि I'll go for therapy, but again my husband was so supportive and he listened to me. So उसमें फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं भी फील हुई. तो आई थिंक एक सपोर्ट सिस्टम अगर आपके पास अच्छा है तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं. सो नॉर्मली अगर हम देखें कि क्वारंटीन टाइम्स एंड कोरोना टाइम्स आर डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. सो व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ बेबी एंड अ न्यू मॉम, तो वो आपके लिए सारा टाइम कैसे था? अच्छा, आई जस्ट गॉट टू नो अभी रिसेंटली, मुझे किसी ने बोला था कि जो बेबीज कोरोना में पैदा हो रहे हैं ना, दे एक्चुअली कॉल्ड कोरोना बेबीज. देयर इज अ टर्म फॉर दैट. एंड यू नो दे लाइक ओ माय गॉड, ओके ये कोरोना बेबीज हैं, ये हिस्ट्री में ये आएगा नाम एंड स्टफ लाइक दैट. तो यू फील इट्स डिफिकल्ट? इट इज़ सो डिफिकल्ट. पहले थ्रू प्रेगनेंसी वाज वेट ये कि अच्छा ओके यू नो आई कांट टेक मेडिसिन्स. बहुत ख्याल रखना पड़ रहा था कि हम लोग बिल्कुल क्वारंटीन होकर बैठ चुके थे घर में. लाइक वी वर नॉट गोइंग आउट, नो वन वाज अलाउड एट आवर प्लेस बिकॉज ऑफ मी. एंड आफ्टर डिलीवरी व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल, तो मुझे एक दिन भी नहीं रख, मतलब शाम को जैसे डिलीवरी हुई थी, अगली सुबह दे बोले कि आप डिस्चार्ज कर दिया, तो वरना 1 से 2 दिन रखते होते हैं आफ्टर सर्जरी. सो माई डॉक्टर वाज लाइक नहीं, यू जस्ट गो होम एंड शी इज़ अ फैमिली फ्रेंड एज वेल, सो आई विल जस्ट यू नो कम देयर एंड लुक आफ्टर यू. अगर कोई ज़रूरत हुई, कोई इंजेक्शन हुए, एनीथिंग, तो हम घर पे लगा देंगे. तो मुझे उसी हालत में दे हैड टू शिफ्ट मी हियर. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अब गैदरिंग्स होती हैं, यू नो पीपल आर कमिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ, बट मी एज अ मदर आई एम वेरी स्केयर्ड. आई एम मेरी अभी बच्चे से कि बहुत सारे अभी इवन क्लोज फैमिली वाले नहीं मिल सके. माई ओन मामू, माई अंकल्स, उन्होंने अभी तक को 7 months की हो चुकी है, पर उन्होंने अभी तक नहीं मिला, कोई मिल सका उससे. और प्लस बहुत ज़्यादा ये होता है कि अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन एज वेल कि अच्छा यू नो आप बच्ची को लाते नहीं हो, मिलवाते नहीं हो आप. फिर also it might be difficult कि आपके पेरेंट्स लाहौर में हैं, you are here in Multan. Exactly. My father met her, like my father is a doctor. Okay. So he saw Alaya after 2 months because he wasn't feeling well उन दिनों में, and he was like I can't take the risk. प्लस ये कि मेरी सर्जरीज हो रही होती हैं, सो आई जस्ट कांट कम एंड सी हर. सो माई फादर मतलब उन्होंने आके 2 महीने बाद सोचे अपने उससे मिले नवासी से. तो वो चीज़ें बहुत हो रही होती हैं और गैदरिंग्स में हम उसको नहीं लेके जा पा रहे होते. सो सारा वक्त ये होता है कि कोई एक बंदा जो है ना वो बाउंड है फिर कि आप बच्ची को देखो फिर दूसरा बंदा बाहर जाए. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख रहे होते हो. बट आई थिंक पर्सनली जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब हम इस एरा में हैं, वी हैव टू यू नो चेंज आवर लाइफ स्टाइल. अब हम अगर यही सोचेंगे ओके यू नो जैसे पहले चल रहे थे, वी कांट डू दैट, द होल वर्ल्ड इज चेंज्ड. तो उस मुताबिक अब आई एम मोर केयरफुल और मैं लाया को हर जगह नहीं लेके जा रही होती. सो यू आर प्लानिंग अ ट्रिप with the Laya. Yes. So what are the preparations you are making in your mind? We are basically we are not going to a new country. Asking specifically in terms of corona के. हाँ अच्छा उसमें ये कि we are not going to experiment with a new country. Turkey में we have a house over there. My brother-in-law and one of my sister-in-law, she lives there. Okay. तो we are planning कि वहाँ पे चलो घर होगा, it's gonna be easy for us to take Alaya वहाँ पे. बाकी ये कि टर्की का यही है कि टूरिज़म है वहाँ पे, अभी तक ओपन है और मतलब people are taking precautions. दूसरा ये कि विल बी लिविंग इन आवर ओन हाउस, तो वो होटल में रहने वाला और वो उस तरह की चीज़ नहीं होगी, तो आई थिंक वो भी काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है रिस्क वहाँ पे. बाकी ये है कि एज आई टोल्ड यू कि हम लोग शादी प्लस आई रियली वॉन्ट हर टू यू नो एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स. अब वो बेचारी सारा वक्त शी इज़ एट होम, आई एम नॉट टेकिंग हर आउट, और मुल्तान में देर नॉट मच प्लेसेस टू टेक हर आउट टू, कोई पार्क्स उस तरीके से नहीं है. सो आई रियली वॉन्ट, और उसको मज़ा बहुत आता है, हम उसको गाड़ी में कहीं ले जाए ना, शी एक्चुअली हैव फन. तो आई वॉन्ट कि एटलीस्ट हम बाहर होंगे ना, सो वहाँ पे शी कैन एन्जॉय ऑल दोज थिंग्स, शी कैन गो टू पार्क्स, वी कैन टेक हर टू बीचेस.
प्लस ये कि ट्रैवलिंग वाली चीज़ भी उसके अंदर आ जाएगी। मैंने पहले भी अपने शायद ब्लॉग में भी आपको याद में मेंशन किया था कि मेरा बहुत ट्रैवलिंग मतलब हमें बहुत ज़्यादा शौक है। सो आई रियली वांट कि उसमें भी ये चीज़ आ जाए एंड आई कैन टेक हर वेयरएवर आई एम गोइंग, बिकॉज मैं उसको छोड़ के नहीं जाना चाहती। आई एम दैट काइंड ऑफ अ मदर। Okay, so what is one thing you have learned from your parents and now you are applying to your Alaya? इट्स लाइक दिस कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं विच यू थिंक अच्छा यू नो व्हाट पेरेंट्स डिड दैट, आई डोंट वांट टू डू दैट। कुछ चीज़ें पॉजिटिव वे में होती हैं कि आप सोचते हो। इफ़ आई टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, आई थिंक माई मदर was very conscious about this कि यार बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना, you know, even with family members she was you know she had this thing और बहुत strong एक उनका opinion होता था कि आप बच्चे जा रहे हैं, if I'm not here, हमारा मिलना जुलना बहुत मामा ने कम मतलब अपने फ्रेंड्स और सर्कल में ना सोशल सर्कल मामा ने बहुत लिमिटेड कर दिया था जब हम छोटे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने ये चीज़ की थी और अब तो इट्स अ नेसेसिटी। अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं, यू कांट लीव योर चाइल्ड अलोन एनीवेयर। तो आई थिंक दिस इज़ द वन थिंग विच आई लर्न फ्रॉम हर एंड आई रियली वांट कि मैं ये आगे चलती रही ये वाली चीज़। और व्हाट इज़ वन थिंग कि आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ किया एंड यू डोंट वांट टू डू Alaya? आई थिंक मुझे लगता है कि जो हमारे से पिछली जनरेशन थी और अगर हम अपनी जनरेशन को देखें तो उसमें बहुत सारे डिफरेंस इस तरीके से कि आई थिंक अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपका एक माहौल का बहुत होता है, ठीक है। लाइक मेरे घर में एक बहुत अच्छा सा एक माहौल था, लाइक वी वर फ्रेंड्स विद अ फादर और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि पापा से कोई बात करनी है तो डर डर के बात की जाए, वो चीज़ नहीं थी। बट मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स अनकॉन्शियसली ट्रांसफ़र करते हैं टू देयर चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे वेंट थ्रू समथिंग ड्यूरिंग देयर टाइम, यू नो, व्हेन दे बिकेम पेरेंट्स, और वो चीज़ उनके रहती है माइंड में और वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो स्टोरीज और वो चीज़ें वो आगे अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसमें आई थिंक कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, फॉर एग्जाम्पल दे हैड एनी इशू और वो फिर उस इशू की वजह से ना वो खुद हील नहीं हो पा रहे होते और वो कहीं ना कहीं अपने चिल्ड्रन में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो आई वॉन्ट टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। प्लस दूसरी वही मैं बताता कि हमारी पिछली जनरेशन में और इसमें एक फ़र्क ये है कि फादर्स वर नॉट दैट इन्वॉल्व्ड। अब जो हैं मैंने नोट किया है जो मेरे बैच के जितने भी क्लास फेलोज हैं जो अब पेरेंट्स बन चुके हैं दे आर वेरी इन्वॉल्व विद देयर बेबीज़। और अब फादर्स जो हैं उनका ये है कि ओके यू नो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो आई वांट कि ये चीज़ हो। So how much your husband help in household chores and he does honestly he is so easy going। मतलब उसका ये कि अगर खाना भी आना है गर्म करना है तो जस्ट गोना गो एंड डू इट हिमसेल्फ। और कोई चीज़ अपनी करनी है वो मैं कर रही होती हूँ like you are also doing blogging so उसमें ये है कि ही हेल्प्स अलॉट विद अलाया। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओके यू नो आई कॉल हिम अप कि यार घर आ जाओ, मुझसे अलाया नहीं संभल रही, सो वेयर एवर ही इज गोना कम बैक होम। या रात को जैसे ही नोस कि मैं पूरा दिन जो है मेरा ऐसे गुजर रहा होता है तो रात को ही इज़ लाइक कि अच्छा चलो रात वाली जो शिफ्ट है वो अंश की ही होती है, उसको दूध पिलाना है वो अंश ही देखेंगे। तो उस मामले में आई एम वेरी हैप्पी ही इज़ सो इन्वॉल्व्ड। वही बात है ना कि लोग हैरान हो रहे होते हैं कि अच्छा यू नो बच्ची बाप के पास आराम से बैठी हुई है, अगर माँ कुछ कर भी रही है तो शी इज़ नॉट लाइक दिस कि मामा चाहिए उसको। तो वो चीज़ हम दोनों में है। आपने ना दो चीज़ें मेंशन की हैं, लाइक एक तो आपकी प्रेगनेंसी वाज डिफिकल्ट। हाँ जी। सेकंड मैं आपकी स्टोरीज में मैंने देखा है कि यू मेंशन कि यू टुक अ ट्रिप इन योर प्रेगनेंसी। हाँ जी आई डिड। सो योर पेरेंट्स एंड लव्ड वंस वो थोड़े से कॉन्शियस नहीं थे कि यू हैव टू रेस्ट एंड ट्रैवलिंग से रिलेटेड? ये ना मैंने नोट किया है बाहर अगर आप नोट करो ना देयर इज एक्चुअली अ टर्म नोन एज बेबी मून आई थिंक, जिसमें इट्स लाइक कि आप जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं हाँ उसमें होता है कि आप प्रेग्नेंट वुमेन दे टेक अ ट्रिप अगर डॉक्टर्स की तरफ से आप रिकमेंडेड है। मैं गई थी व्हेन आई वाज 5 months प्रेग्नेंट और उसमें ये था कि आस्क माय डॉक्टर लाइक तबीयत थी और लेकिन फिर भी आई वाज आस्क कि मैं कर सकती हूँ या नहीं एंड शी वाज लाइक आई थिंक यू कैन गो। तो वी वेंट टू दुबई। हम बहुत ज़्यादा दूर वाला ट्रिप भी नहीं किया लेकिन ये था कि ऑनेस्टली मैंने उस ट्रिप पे खाना भी खाया। उस ट्रिप पे आई यूज़ टू वॉक सो मच। मैं पूरा दिन मॉल्स में फिरती थी और मुझे जो भी क्रेविंग्स थी खाने की यहाँ तबीयत ख़राब होती थी वहाँ जाके आई यूज़ टू ईट प्रॉपरली। तो माहौल का फ़र्क पड़ना बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर डॉक्टर्स की तरफ से रिकमेंडेड है तो आई थिंक लेट वुमेन एंजॉय दैट टाइम एज वेल। बिल्कुल आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरे होते हो और अगर आपको वो चीज़ पसंद है ना, जैसे बताया कि आई लव ट्रैवलिंग, तो मैंने वो जब किया आई इवन वेंट और मैंने शॉपिंग की प्रॉपर अलाया की वहाँ से और वापस आए तो कोरोना हो गया था, मतलब लॉकडाउन स्टार्ट होना शुरू हो गया था एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो ट्रिप था पूरी प्रेगनेंसी में विच एक्चुअली हेल्प मी बाकी के मंथ्स में।
तो वही बात आ जाती है कि आपको आई थिंक अगर डॉक्टर से रिकमेंडेड है, लेट देम डू वट एवर दे वांट टू डू, जो उनको इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू सो मच. तो इस तरीके से कहीं ना वो कॉम्पनसेट हो जाता है. So weight gain is obvious after Yeah. pregnancy. So you took anything special like कोई diet plan या exercise after pregnancy जिससे आप active और healthy रह सकें? यार आई टोल्ड यू कि आई लॉस्ट 10 kgs प्रेगनेंसी में. इन प्रेगनेंसी इंस्टेड ऑफ गेनिंग वेट आई वाज लूजिंग वेट, बट आफ्टर माई सी सेक्शन आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट अभी, बिकॉज एक तो आप उन 4-5 months यू कांट एक्सरसाइज, प्लस कोरोना यू कांट गो आउट, जिम्स बिल्कुल हो गए थे बंद सारा कुछ. और उसके बाद ये कि विद बेबी बहुत मुश्किल हो जाता है. आप सोचते हो और उसके बाद ये था कि आई हैड टू ईट, बिकॉज अगर आप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स यू नीड टू ईट, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू फीड योर बेबी. लाइक इंस्टेड ऑफ नॉट ईटिंग आपने कोई मेजर हेल्दी डाइट की तरफ स्विच किया हो या? ऑनेस्टली आफ्टर डिलीवरी नो, बिकॉज वही बात थी कि अगेन आई वाज जस्ट ईटिंग जंक और इस तरह की एनीथिंग आई वांट. बट अब जाके लाइक अब अलाया माशाल्लाह 7 months की हो चुकी है नाउ, और मेरा भी मुझे फील हो रहा है कि आई एम हील्ड. तो उसमें ये है कि आई कैन स्टार्ट वर्कआउट नाउ. सो आई एम प्लानिंग टू गो फॉर प्रॉपर, नॉट प्रॉपर डाइट वाली चीज़ जो मेंटेन ना हो सके, बट या आई हैव मेड अ प्लान फॉर माई सेल्फ, एक्सरसाइज प्लान एंड डाइट प्लान, जो इंशाल्लाह से मैं करूँगी. इवन आई एम गोना शेयर इट विद माई ऑडियंस, तो आई विल लेट यू नो जब भी स्टार्ट करूँगी. How much you feel it is important for a mother to spare some time for herself and do things she like we have seen you on Instagram. You are doing blogging and sharing your life. So how important it is for a mom or a person? Very important, honestly. अच्छा, मैं अभी तक उस चीज़ में हूँ कि my whole day is dedicated to her. It's like कि अगर 24 hours में I am taking at least 3-4 hours जो मैं अपने लिए वो कर रही हूँ. अब जाके my husband basically was like कि नहीं start करो, he saw me making, I used to write all her recipes in a diary, I used to read books, I was decorating her nursery, and then he asked me one day, yeah, you have so much, you have a content and you're doing a lot of things, so why don't you just show it to your audience. Start blogging. And कर तो लिया, but honestly it's so hard to manage with her. Whenever I'm trying to make a video or anything, तो उसको पता चल जाता है, okay, my mom is doing something else and she's not focusing on me, so she starts getting cranky. तो वो यही है कि my priority is obviously अलाया, but मैं वही कहती हूँ कि आप थोड़ा सा भी टाइम निकालो. मैं घंटा अगर मिल जाता है उसमें I play my video games, मैं जाके लंबा से एक शावर ले लेती हूँ, even that's fun. अब तो निकाल लें ज़रूर. You mentioned in your stories कि मैं मेकअप को एंजॉय करती हूँ, getting ready. Exactly, do that, because मैंने अब नोट किया है कि जब आप बहुत थक जाते हो ना and you're not doing anything for yourself, आपकी वो aggression जो है ना कहीं बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही होती है. You are getting more irritated. But अगर मैं दिन में 1 से 2 घंटे अपने निकाल रही हूँ, I'm fresh. उसके बाद when I हैंडल लगाया तो आई एम हैप्पी इन डूइंग दैट. मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड या फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट फॉर यू बट फॉर योर बेबी एज वेल. और थोड़ी सी उसको भी आदत पड़ जाए, ट्रांसफ़र होता है, आपके एटीट्यूड में आ जाता है, आपकी इमोशंस में आ जाता है. बिल्कुल. सो लाइक आपने बहुत ज़्यादा अपने इंटरव्यू में भी डिस्कस किया है कि आप बहुत हाइपर विजिलेंट हो गई थी. योर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड अलाया. सो ऐसा हुआ है कि हमने आपकी स्टोरीज में भी देखा है कि आपने जो है ना बेबी मॉनिटर लिया और ऑल द टाइम वेयर एवर यू आर आप उसको मॉनिटर करती हैं. सो डज दिस हैपन कि आप यू आर स्लीपिंग एंड यू फील लाइक यू आर स्टिल अवेक? यस इट डज. मैं वही बता रही हूँ ना, एक होती है जब से लाई हुई है मैं एक डीप स्लीप में नहीं गई. आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो है ना आपको ये हो रहा होता है ओके मैं अगर सो गई तो बेबी वहाँ पे है, ये अलग है. लाइक मैंने बेसिकली उसको सुलाती कॉट में, उसको मैं अपने बेड पे नहीं सुलाती. पहले दिन से आई वाज ऑन दिस प्लान आई कि यार नहीं उसको कॉट में सुलाना है. शी शुड बी स्लीपिंग इन कॉट. रिस्क फ्री ज़्यादा है बेड से, मतलब इट्स मोर कंफर्टेबल भी है और रिस्क फ्री हो जाता है कि ओके आप ही कंफर्टेबल लेट रहे हो. उसको भी एक आदत होगी. बट वो वही बात है कि वो वहाँ सो रही होती है. इवन अच्छा मैं तो यहाँ तक कॉन्शियस हूँ, जैसे कल गेस्ट आए हुए थे एंड मैं बाहर थी बट कैमरा लगाया हुआ था, बट आई आस्क्ड वन ऑफ माई हेल्पर्स कि नहीं वहीं साथ बैठ जाओ ताकि कैमरा भी है, वो हेल्पर भी बैठी हुई है. तो उस मामले में मैं थोड़ा अभी हूँ. एंड आई थिंक बेबी मॉनिटर के जैसे मैंने मेंशन किया था ना, फॉर लेडीज़ जो घर संभाल रही हैं, वर्किंग वुमेन है, बहुत यूज़फुल चीज़ है. सो आई एक्चुअली से कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है ना
तो बेबी मॉनिटर, स्टरलाइजर, इन चीज़ों में ज़रूर इन्वेस्ट करें, आपकी खुद की लाइफ आसान हो जाती है। बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट द नैनी, सो हाउ मच इन टेकिंग केयर ऑफ अलाया, नैनी का आपकी क्या रोल है? कितना आप उन पे रिलाई करती हैं? माई सेल्फ, मतलब हर चीज़ वो मैं खुद कर रही होती हूँ, उसका खाना तैयार करना है, नहलाना है, सुलाना है, एवरीथिंग। नैनी की जहाँ तक हेल्प है ना, वो यही है कि ओके ये चीज़ यहाँ, इवन कई बार हो रहा था कि मैं कमरा भी खुद सही कर रही होती हूँ, बिकॉज वो मुझसे नहीं हो रहा होता कि आपको वो हो जाता है कि यू कांट ट्रस्ट एनीवन विद एनीथिंग समटाइम्स। तो उसमें ये कि जो मेरे पास जो हेल्पर है उसका बस यही काम है कि ओके इफ आई एम डूइंग समथिंग, आप बस बैठ जाओ उसके पास, शी जस्ट सिटिंग विद हर, बाकी उसको उठाना तक जो है ना, मैंने उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, या आई विल बी डूइंग दैट। दैट्स ग्रेट। अच्छा, व्हाट आर योर प्लान्स इन टर्म्स ऑफ योर ओन करियर? Like, where do you want to see yourself in coming 5 years? That's a very difficult question. अच्छा, I've always एक career conscious तो मैं थी. I was working before getting married. I even started working after getting married. With your mother-in-law. With my mother-in-law, and then we launched our brand. So I was taking care of the salon and my shop as well. तो आई कांट जस्ट सेटल लाइक दिस, खाली जैसे होता है ना बैठना, वो मैं कर ही नहीं सकती। फिर अलाया के बात होने के बाद ना, अभी आजकल यही चीज़ हो रही होती है कि एक जगह होता है कि आई कैन नॉट लीव हर अलोन, बट एट द सेकंड वो मतलब ये भी है कि मुझे ये हो रहा होता है कि आई नीड टू डू समथिंग। अभी कल परसों आई वाज टॉकिंग टू माई हस्बैंड कि यार आई नीड टू डू समथिंग, आई कांट जस्ट सिट लाइक दिस। और वो भी मुझे कह रहे होते हैं कि यू डोंट इवन गेट टाइम फॉर एनीथिंग एल्स, हाउ यू गोना मैनेज एवरीथिंग। तो हाँ, लेकिन वो ये चीज़ है कि I really want to go out, I really want to settle abroad, and वहाँ जाके I want to do something of my own, not a job but something of my own. हाँ, some business, something of my own. और उसमें यही है कि अगर 5 साल का अगर प्लान पूछें तो I really wish कि मैं बाहर होंगी और कोई ना कोई मैंने कुछ लॉन्च किया होगा डेफिनेटली, तो ये चीज़ है, एंड आई विल डेफिनेटली वर्क। तो वो नहीं है, बट वही बात आ जाती है कि यू जस्ट हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़। पहली प्रायोरिटी ऑब्वियसली इज़ माई बेबी, और फिर वो काम। Okay, so like you are on Instagram. When we were growing, there was no Facebook, no Instagram, no social media. Yeah. So do you feel that pressure that my child is very much exposed to social media, and like how you take this digital era and your baby is growing up in this? I think we can't control it a lot. ठीक है, I am prepared for that. मुझे इतना पता है कि एक चीज़ जो है आप इट्स देयर, ठीक है, एंड इट्स अ फैक्ट कि वो बड़ी होगी एंड शी इज़ गोना लुक अराउंड, ओके शी इज़ गोना आस्क फॉर ऑल दीज थिंग्स एज वेल। सो इंस्टेड ऑफ कि मैं बिल्कुल उसको इस चीज़ से बंद करके रख दूँ, आइदर आई कैन डू दैट, वो फिर कहीं और से भी कर सकती है, ठीक है, या एक चीज़ उसको पता हो, ओके ठीक है, आई हैव माई इंस्टाग्राम अकाउंट, आई एम, या ये चीज़ें हैं, बट मुझे तो उसको इतना पता होना चाहिए कि एक लिमिट में, चेक एंड बैलेंस और लिमिट में। वो अभी भी कभी कभार जो है ना कार्टून, इस एज में भी उसको शौक कितना है, वो कभी कभार बैठ के कार्टून्स देख रही होती है अपने, बट अगेन वी कैन नॉट स्टॉप। और जब उसकी अपनी मॉम इज गोना बी ऑन इंस्टाग्राम, सो इट्स नॉट फेयर फॉर अ बेबी कि अच्छा इफ आई एम डूइंग समथिंग और फिर मैं उसको फोर्स करूँ, बट आई कैन टेल हर ओके इस एज में यू कैन गेट दिस, इस एज में यू कैन गेट दिस, इस तरह की चीज़ें। और वही बात है कि एक लिमिट में रख के बैलेंस, हाँ जी, एग्जैक्टली। और आई थिंक जो पेरेंट्स ये बोल रहे होते हैं कि नहीं हम लोग रोकेंगे, आप इस जिस एरा में आप हो आप रोक ही नहीं सकते। एवरीथिंग इज डिजिटल, और अब कोरोना के बाद तो एवरीथिंग इज आप मोस्टली आपके काम हो रहे होते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज हैं, सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग ऑन डिजिटल मीडियम्स फॉर, वो होगा, आई एम प्रिपेयर फॉर दैट, बट वही बात है कि उसको आप बैलेंस कैसे लाओगे वो ज़रूरी है। तो वो इवन माई हस्बैंड सेज दैट कि मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है वीडियो गेमिंग का, लाइक ही इज़ क्रेजी अपने शौक पे, तो वो भी ये कहते हैं कि इफ़ शी वांट्स टू डू इट आई विल लेट हर डू इट, बट अगेन कि एक हद तक कि ओके भाई ये टाइम है इतना इस एक्टिविटी के लिए और इस टाइम पे ये एक्टिविटी करनी है, तो फिर आई थिंक इट्स गोना बी फाइन। बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इसको स्टॉप नहीं कर सकते। नहीं, आप स्टॉप करोगे योर बेबी इज गोना गेट मोर क्यूरियस एंड शी इज गोना आस्क कि ओके, वही बात है कि आप रोक दोगे तो वो कहीं और से कर लेगी या वो छुप के कर लेगी, तो इट्स बेटर कि आपके साथ ही कर ले और आपको पता हो हर चीज़ का। तो आई थिंक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में वो यही बनती है। ओके, सो वी हैव वेरी फन इंटरव्यू। अभी हम इसे थोड़ा सा लाइटर मूड में लेके जाते हैं। मैं आपको एक ट्रू एंड फॉल्स की सिचुएशंस एंड स्टेटमेंट्स दूंगी एंड यू हैव टू टेल मी कि आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स। So my first statement is a good mom is only called good if she knows to balance everything in her life. First, true or false? It is true.
which should be false, but unfortunately it is true. आप पे मसलसल जो है ना ये एक चीज़ होती है, people are judging you all the time, so it is true. Also, it's important, like you have to maintain balance with your work, with your You kid, have your to, family, your exactly. parents. और वही बात होती है कि वो एक बेचारी औरत जो है ना, इवन अगर इमोशनली इफ शी इज गोइंग थ्रू समथिंग ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरा मूड ख़राब है ना, तो ऑटोमेटिकली पूरे घर का मूड ख़राब हो जाएगा, बिकॉज आई एम गोना ट्रांसफर दैट. सो इफ आई एम गोइंग थ्रू समथिंग आई हैव टू कंट्रोल इट, ताकि बाकियों का ना हो, और ये एक नेचुरल सी बात है. तो वही बात है कि जजमेंट आपकी उस पर आ रही होती है हर टाइम पे. So it's true. It is true. Working moms looks down upon stay-at-home mom. True or false? True. Definitely true. Working moms पे बहुत ज़्यादा criticism आता है. Even जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मुझे कुछ मॉम्स का मैसेज, क्योंकि मैसेजेस पे आए थे कि यू नो हाउ आर यू गोना डू इट, व्हाट अबाउट योर बेबी, या एक दो लोगों ने भी मुझसे कहा कि अच्छा तो बच्चा तो निगलेक्ट होगा. बट अगेन वर्किंग वुमेन भी अगर जाएँ दे कैन. माई मदर इन लॉ इज़ अ वर्किंग वुमेन, बट उन्होंने अपना घर भी संभाला, प्लस अपना सैलून भी संभाला, अच्छा खासा बिजनेस संभाला, प्लस फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की. सो यू कैन डू इट. लेकिन वही बात है कि आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि आपने कितना टाइम बच्चे को एलोकेट करना है, कितना अपने करियर को एलोकेट करना है. डिफरेंट एजेस में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं. और हाँ जी, तो अगर मदर वर्किंग वुमेन है ना, तो उसके बहुत सारे पर्क्स भी हैं. योर बेबी इज गोना लर्न सो मच फ्रॉम यू नो देयर मदर्स. तो हाँ, लेकिन ये ट्रू है, विच शुडंट बी ट्रू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू. Okay, all moms have to like their kids all the time. True or false? I don't think they have to. I think it's a false. यार ज़रूरी नहीं है. Sometimes you get angry. मुझे कभी बुरा लाया भी हो रहा होता है कि यार क्या मसला है, you know, कि सो जाओ. Baby is cranky or sometimes. तो I think no, it's false. ज़रूरी नहीं है कि और आप कर रहे हो तो you just not accepting it, but आपको बेबीज़ पे भी गुस्सा आ रहा होता है. तो So yeah, it's natural. It's natural. It's a false. Working moms do not dedicate enough time to their kids than stay-at-home moms. I honestly, it's a very judgmental question. I just say it's a false. वही बात है कि कर भी रहे होते हैं, नहीं भी कर रहे होते हैं. तो it goes both ways. बस वही बात है कि वर्किंग वुमेन पे पर्सन टू पर्सन में वेरी करते हैं. और प्लस ये बात है जो वर्किंग वुमेन होगी ना, उस पर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा अलग होंगी. इवन फॉर एग्जाम्पल एक मदर है, ठीक है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मदर्स जो घर पे होती हैं, बट अगेन घर पे होते हुए दे नॉट लुकिंग आफ्टर देयर बेबीज उस तरीके से. और कुछ औरतें एक्चुअली ऐसी हैं जो काम भी कर रही होती हैं और वो अपना घर भी देख रही होती हैं. सो इट वेरीज बेसिकली. सो बेसिकली जो है ना, टाइम से ज़्यादा क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और दूसरी बात ये कि आप अगर मैं दो मदर्स आपके सामने होंगी ना, लोगों से आप पूछेंगे ओके शी इज़ अ वर्किंग वुमेन एंड ये घर पे हाउस वाइफ हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि ज़्यादा बेहतर ख्याल रखता होगा बच्चे का. आप 80% लोग उन पे ज़रूर बोलेंगे एंड 20% are gonna say कि नहीं वर्किंग वुमेन जो है ना वो नहीं करती होगी, जबकि ऐसा नहीं है. आई थिंक वर्किंग वुमेन कैन एंड आई थिंक उनमें ये ज़्यादा स्किल्स होती हैं, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, क्योंकि वो एक गिल्ट होता है कि मॉम गिल्ट आपको हर वक्त होता है. इवन इफ यू आर अ वर्किंग मॉम, इवन या आप हाउस वाइफ हैं, वो गिल्ट ना आपको एज अ न्यू मॉम जो है ना वो रहता है. सो आई थिंक आप वो वर्किंग वुमेन पे ना हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत डिफरेंट होती हैं. ओके, माई नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पेरेंटिंग बुक्स टीच यू एवरीथिंग यू दैट देयर इज टू नो अबाउट बीइंग अ मॉम. I told you I read a lot of books. It helps you, but it doesn't teach you because every baby is different. तो मैंने जितनी बुक्स पढ़ी, मैंने जितना उससे पहले सर्च किया, जब एक्चुअल अलाया हुई थी, it was all different. Experience. You learn from your experience, and every person and every baby is different. So yeah. Okay, my next statement is you should enjoy every moment of being a mom, irrespective of anything good or bad. True or false? True. You should enjoy. मतलब आपकी वही चीज़ है कि गलतियाँ भी होंगी एज अ न्यू मॉम, आप मिस्टेक्स करोगे, बट अगेन यू गोना लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स. आपका बेबी हेल्दी है ना, यू आर गिविंग योर बेबी दैट टाइम, आप उसको खाना खिला रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, उसके बाद यू शुडंट बी वरीड अबाउट एनीथिंग. हाँ, तो हर चीज़ को एंजॉय करो, अपने बेबीज़ की हर चीज़ को, मतलब इवन उनका क्रैंकीनेस भी है ना, तो वो फेज गुजर जाएगा. जस्ट एंजॉय, ये बात है. So it was very fun segment. Thank you. Next segment is rapid fire. Okay, I'm so bad at that. Okay, I will give you two this or that type होगा ये. Okay. मैं आपको दो words दूंगी. You have to choose between them. Okay. Okay. So happy mom or perfect mom? Happy mom. Happy. I think happy moms Oh, it's are very perfect mom. Planned trip or sudden trip?
Plan trip. I always plan my trips. So introvert or extrovert? Extrovert. Foodie or shopaholic? Shopaholic. Morning person or night owl? Night out. Eastern or western? Western. Bright colors or pastel colors? Pastel colors. Modern or trendy? Trendy. Party or long drive? Party. Beach or hill station? Beach. Anytime. So that's it for today. Thank you so much. I really enjoyed interviewing you, and thank you for being on my channel. Thank you for having me here. I really enjoyed the whole interview. Yes. So I will be mentioning the link of her Instagram and my Instagram in description. You can check out both of our Instagram pages, and do subscribe and like to my channel. Allah Hafiz. Thank you.